Today, we thought of taking up this topic about experiencing love and expressing love. One topic which concerns every human being. One emotion which disturbs every living being across the globe. Today, you would close your eyes and listen with your ears and listen through your mind and preferably listen directly in your heart. I want you not to merely listen through your ears. I don't want your mind only to listen to it and analyze it and judge it and dissect it and correct it and edit it and throw it away. No. I want whatever we are talking today should go beyond the barriers of your mind, should go beyond the critical or the judgmental faculty of your mind, should go to your heart. I want every second, every minute of today's session to help you, to benefit you, to transform you in some other way in making your life better or making your near anyone's life better. So the experiment today would be that you shall be listening more than seeing. And since what I'm proposing today, a new experiment, a new experience, that you would be listening more than the seeing, so I shall keep my video off. So now onwards, my dear friends, you will not be seeing me. I should be reappearing after 15 minutes. I will not be disappearing. I'm here. Every second I'm here. I shall be reappearing after 15 minutes. But during these 15 minutes, you shall be just listening to and not seeing me. Are you ready for it? Hi, friends. This is Dr. Rajiv Anand, psychiatrist, marriage counselor, essentially your friend, your well-wisher, your guide in this life. When you go to a foreign country, when you go to a new exotic destination, for traveling, for touring, guide help you save your time, not going to useless places, and help you make the optimum use of the time to go to the right places in the shortest possible time, in the shortest possible route, and to enjoy the best whatever time you have taken out for traveling. Guide. Similarly, the guide in your life who help you save your time, energy, emotions, which most of us do waste. And the guide who knows about life little better, whether by virtue of his studying through books or studying through life's events, the guide who would help you save your time and who would help you optimize your time to get the best of the experiences, the best of the happiness, make the best of whatever you can. So, in this series, we are going to talk about love, an emotion, an experience which has disturbed millions of people across the world, which has agonized millions of people. एक ऐसा इमोशन, एक ऐसी भावना, एक ऐसा अनुभव जिसने दुनिया के हर देश में, हर कोने में, हर व्यक्ति को कभी ना कभी जरूर परेशान किया है, और कुछ लोगों को अनफॉर्चुनेटली पूरी जिंदगी भर परेशान किया है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको ये गलतफहमी ना हो कि उसको उसकी जिंदगी में जितना प्यार मिलना चाहिए था, जितना प्यार वो डिजर्व करता था, उतना प्यार उसे मिला नहीं। क्यों ऐसा है? हम सब क्यों ऐसा महसूस करते हैं कि हमें उतना प्यार नहीं मिला जितना प्यार मिलने के हम हक रखते थे? क्यों हम लोगों को कोसते हैं, हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को, मदर इन लॉ को, फादर इन लॉ को, फ्रेंड्स को, बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को? क्यों हम लोगों को कोसते हैं कि वो हमें प्यार नहीं देते, या हमारी जिंदगी में प्यार नहीं है, हमारी जिंदगी प्यार से खाली है, हम जितने अच्छे हैं हमें उतना प्यार नहीं मिला? ऐसा क्यों है? कभी हमने रुककर, कभी हमने ठहर कर अपने आप के अंदर जाकर ये सोचने की कोशिश की है कि जिसको हम प्यार समझकर प्यार लोगों से मांग रहे हैं वो क्या है? क्या वो सही प्यार है?
क्या वो जेन्युइन लव है? क्या वो रियल लव है? क्या वो ही सही लव है जो हमें हमारी लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेगा, या हम उसे लव समझ रहे हैं, हम उसे प्यार समझ रहे हैं? क्योंकि हमारी ट्रेनिंग प्यार शब्द की कहाँ से शुरू हुई? जो हम बच्चे थे तो हमारी बेसिक नीड थी सुसु पास करने की, पॉटी पास करने की, नींद आने की, भूख लगने की, अनकंफर्टेबल महसूस करने की। तो हमारे चारों तरफ की दुनिया में जितने लोग थे, हमारी फैमिली में जितने लोग थे, मदर फादर ब्रदर सिस्टर्स, उन्होंने हमें गोदी में उठाया, उन्होंने हमारी बेसिक नीड की टेक केयर किया, उन्होंने हमें पैट किया, उन्होंने हमें कंफर्ट किया, हमने उसे प्यार समझा। और उस समय के हिसाब से, उस जिंदगी की उम्र के हिसाब से वो प्यार था, सही था, वो उस समय के लिए प्यार था। हमारी बेसिक नीड को फुलफिल करना, बेसिक नीड को टेक केयर करना, वो प्यार था। हम उम्र से बड़े हो गए, मगर हमारे अनुभवों से हम वहीं अटके रह गए कि हमारी बेसिक नीड को जो टेक केयर करे उसे हम प्यार कहेंगे। तो somebody should take care of me। कुछ हद तक गलत भी नहीं है। Yes, if somebody can take care of me, that's a part of a love process, but that's not all about love। हम किसी का ख्याल करें, हम किसी की केयर करें, वो प्यार का एक हिस्सा है। हमारे घर में 10 कमरे, उनमें से एक कमरा ये है, मगर वो एक कमरा ही पूरा घर नहीं है। टेकिंग केयर इज नॉट इनफ टू मेक अ लव। तो हमें से बहुत सारे लोग शरीर से बड़े हो गए, उम्र से बड़े हो गए, लेकिन हम हमेशा प्यार के मामले में बेकार ही रहे। कोई मेरी केयर करे, कोई मेरा ख्याल करे, कोई मुझे प्यार करे। कि मैं किसी की केयर करूं, मैं किसी का ख्याल करूं, मैं किसी को प्यार करूं। और ऐसा जब मनचाहे रूप में नहीं होता तो हमें लगता है कि हम दुखी हैं, हम विक्टिम हैं, हम बेचारे हैं, हमें प्यार नहीं मिल रहा। और हम खुद को अपनी बनाई हुई जेल में बंद कर लेते हैं, खुद को ना होते हुए मरीज समझ लेते हैं, खुद को ना होते हुए डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। हालांकि हम इंटेलिजेंट हैं, हालांकि हम पढ़े लिखे हैं, हालांकि हम समझदार हैं, लेकिन इन मामलों में हमारी समझ, हमारी एजुकेशन, हमारी इंटेलिजेंस काम नहीं आती। हम में से कुछ लोग जिन्होंने बड़े होकर पिक्चर देखी, पिक्चर में रोमांस देखा, वहां हम लोगों ने समझा कि कंसेप्ट ऑफ लव ये है। रोमांटिक मूवीज में एक दूसरे के साथ टाइम गुजारना, एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, एक दूसरे के साथ गाने गाना, एक दूसरे को आई लव यू बोलना। तो हमें लगा ये प्यार है। यानी प्यार होने के लिए दो लोगों का साथ होना जरूरी है, और खासतौर पर दो लोग जो अपोजिट जेंडर के हों, मेल फीमेल, बॉय गर्ल, मैन वुमेन, जो एक दूसरे के साथ समय गुजारना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, या शादी करना चाहते हैं और जिंदगी भर बंद के रहना चाहते हैं, सोलमेट की तरह, सोलमेट की तरह। लेकिन बन जाते हैं क्या? सेलमेट। सेलमेट जैसे जेल में दो बंदी, और पता नहीं कहाँ प्यार कहाँ गायब हो जाता है। उस प्यार के मॉडल से जो हमने मूवीज में देखा, रोमांटिक मूवी में देखा, उससे हम लोगों ने बिलीफ सिस्टम डेवलप किया कि प्यार मिलने के लिए किसी का होना जरूरी है। हमारी लाइफ में कोई ऐसा हो जो अपने आप को कमिट करे, जो कमिट करे कि हमें पूरे जीवन भर बिना रुके हुए, बिना इधर उधर देखे हुए हमें हमेशा ध्यान देगा, अटेंशन देगा, हर दिन हमारा ख्याल रखेगा, हर दिन हमें नर्चर करेगा। आप सोच के देखिए, किसी बच्चे को बचपन में चॉकलेट दी जाती थी, उस बच्चे को दिमाग में एक बात बैठ जाए कि दुनिया में मिठाई होती है तो सिर्फ चॉकलेट होती है, उसके अलावा कोई मिठाई नहीं होती। उससे बड़े बच्चे को उसके घर में रसगुल्ले खिलाए जाते थे, वो बच्चा ये मान ले कि दुनिया में एक ही मिठाई होती है, इसको रसगुल्ला बोलती है, उसके अलावा कोई मिठाई नहीं होती। उससे बड़े बच्चे को चॉकलेट नहीं, रसगुल्ला नहीं, कोई आई लव यू बोलता है तो उसको लगता है कोई जब तक बोलेगा नहीं आई लव यू तब तक लव ही नहीं है, और जब तक कोई मुझे बोलेगा नहीं, जब तक मैं कान से नहीं सुनूंगा, तब तक लव ही नहीं है। तो हम सब लोग के दिमाग में एक इंप्रेशन है, एक बिलीफ सिस्टम है कि लव से हमें प्लेजेंट सेंसेशन आएगी बाहर से, किसी दूसरे व्यक्ति से। हम दूसरे व्यक्ति पर फिक्स हो जाते हैं, फिक्सेटेड हो जाते हैं, ऑब्सेस हो जाते हैं।
हम दूसरे व्यक्ति को पजेस्ट करने लगते हैं, उसको हम कहते हैं कि हम तुम्हें प्यार करते हैं, वी क्लेम दैट वी लव हिम और हर, और हम हमेशा चाहते हैं कि वो हमेशा गाना गाता रहे प्यार का, वो हमेशा हमारे पास बैठा रहे, वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ सुनाता रहे, कुछ ना कुछ हमारा ख्याल करता रहे। और अगर वो किसी वजह से हमसे दूर चला जाता है, किसी वजह से हमें उतनी अटेंशन नहीं दे पाता, तो हमारा दिल टूट जाता है, या हमें लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, या हमारे प्यार मिलने की जो स्पीड हम चाहते हैं, अगर उसमें कहीं थोड़ी सी भी रुकावट आ जाती है, तो हमें लगता है कि वो हमारे साथ गलत कर रहा है, वो हमारे साथ बेवफाई कर रहा है, और शायद वो प्यार किसी और को दे रहा है जो हमारे हक का है। और हम शेरो शायरी करने लगते हैं, दुखी वाले गाने गाने लगते हैं, मरीज बन जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कभी हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि हमारी एक्सपेक्टेशन ही हमारे दुखों का कारण थी, हमारे प्यार की डेफिनेशन ही हमारे दुखों का कारण थी? क्योंकि जिसको हम प्यार समझ के उम्मीद कर रहे हैं, क्या वो सही प्यार था? क्योंकि जो सही प्यार है, उसका कनेक्शन हमारे अस्तित्व से है, हमारे प्यार को उसकी एसेंस फॉर्म में अनुभव करने से है, जो हम अपने जीवन को किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से डालते हैं, उससे जुड़ा हुआ है, जो इस बात से जुड़ा हुआ है कि हम जीवन से कितने जुड़े हुए हैं, जो इस बात से जुड़ा हुआ है कि हमारे हमारे दिल में जो केंद्र है, उसके जरिए हम कितने लोगों से जुड़े हुए हैं, कितने लोगों को हम प्यार की एनर्जी देते हैं, और देने से पहले हम पाते हैं। आप सब लोग अपनी इंटेलिजेंस से ये बात तो जानते हैं कि सारे इमोशन में प्यार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल इमोशन है, और ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और उसकी वजह से दुनिया में जितने भी चमत्कार, जितनी भी चीजें आपने देखी हैं हमारी पूरे चारों तरफ, वो सब प्यार का ही मैनिफेस्टेशन है। आप बड़े बड़े पेड़ देखते हैं, कहाँ से आए? आप प्रकृति में बादल देखते हैं, कौन उनको लेकर आया? आप प्रकृति में बारिश देखते हैं, आप प्रकृति में धनुष देखते हैं, आप प्रकृति में हरियाली देखते हैं, आप प्रकृति में जितने जीव जंतु देखते हैं, आप प्रकृति में जितने कीड़े देखते हैं, आप प्रकृति में जो कुछ भी देखते हैं, आप प्रकृति में आसमान देखते हैं, उन सब के पीछे जड़ में प्यार है। वो प्यार ही मैनिफेस्ट हो रहा है। और ये बात सुनने में अगर जिन लोगों को अजीब लगेगी, उनकी क्लैरिफिकेशन के लिए एक बात बताना जरूरी है। जहां भी आप कई एनर्जी का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, वहां प्यार है। जहां भी आप सामूहिक रूप से कुछ चीजों को देख रहे हैं, वहां प्यार है। बारिश होती है, क्या पानी की बूंदें अपने आप पैदा होती है? नहीं। कहीं पर समुद्र पानी उड़ता है भाप बनकर, कहीं हवा उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती है, कहीं बादल बनते हैं, कहीं हवा बादल को कहीं से कहीं ले जाती है, कहीं सूरज की गर्मी से टेम्परेचर बदलता है, कहीं वो फिर पानी की बूंदों में बदलती हैं, तो कहीं जाके बरसती हैं। कितने अलग अलग एलिमेंट, कितने अलग अलग एनर्जी ने एक दूसरे का साथ देकर प्यार को मैनिफेस्ट किया बारिश के रूप में, और वही पानी बारिश का फिर से धरती पर आकर फिर से हरियाली क्रिएट करेगा, फिर से पेड़ों को नरिश करेगा, फिर से हमारी जितनी खेती होगी उसके लिए पानी की जरूरत होगी, फिर से हम लोग जितने लोग हैं उनके शरीर को, उनके जीवन को सही तरीके से नरिश करने के लिए वो पानी हमारे खाने में, हमारी सब्जियों में, हमारे गेहूं चावल में उनके अंदर एनर्जी भरेगा। तो ये पूरा एक क्रम है प्यार का। कितने एलिमेंट जुड़े हुए हैं, ये मैनिफेस्टेशन है प्यार का। हम इसे प्यार नहीं मानते, हम चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें कोई बोले आई लव यू, हम उसे सिर्फ उसको प्यार समझते हैं। हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा, हमें उस लव फ्रीक्वेंसी से हमेशा जुड़ना होगा, हमें अपना एनर्जी लेवल बदलना होगा, हमें लव को और इतने सारे सोर्सेस से अपने अंदर लाना होगा,
तब हमारे अंदर वो लव की इमोशन की सही वार्मथ हमारे अंदर महसूस होगी। पहले हमें महसूस होगी कि हमारे अंदर बहुत सारा प्यार है, तब हम दूसरों को पास कर पाएंगे। ये बात को सोचना जरूरी है, क्योंकि पुराने थॉट प्रोसेस को बदलना जरूरी है। 2 मिनट आंख बंद करके इसके ऊपर सोचिए। ये पहले प्यार को लाना जरूरी है अपने अंदर, तब हम दूसरों को बांटेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। और जब हम बांटेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तब हमारे अंदर और प्यार आएगा। क्लोज योर आइज फॉर 2 मिनट्स, थिंक ओवर। Continuing talking about experience more love, express more love, to get more love. E for experience, E for expression, and G for getting more love. तो EEG, आपको इस कंसेप्ट को समझने में मुश्किल हो तो आप EEG याद कर लीजिएगा। E for experiencing, E for expressing, E for getting। तो हमें पहले प्यार को पाना है उन सोर्सेस से जो हमारे चारों तरफ राउंड द क्लॉक अवेलेबल हैं, उन सोर्सेस जो पूरी धरती में, पूरे विश्व में, पूरे प्लेनेट अर्थ पर व्याप्त हैं, हमेशा अवेलेबल हैं, हर किसी के लिए समान रूप से अवेलेबल हैं। वो कौन से सोर्सेस हैं जहाँ प्यार अथाह एबंडेंस में भरा हुआ है, जो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इमेजिन करिए एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आपको पीछे दूर बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक सुनाई दे रहा है। क्या वो म्यूजिक ऐसे ही बज रहा है? इमेजिन करिए कुछ सितार होता है, या वीणा होती है, या फ्लूट होता है। तो कैसे बनाए जाते हैं? कैसे उनमें संगीत निकाला जाता है? कैसे उनको अंदर से खोखला किया जाता है? कैसे उनके अंदर स्पेस क्रिएट किया जाता है, ताकि जब एयर पास होगी तो बांसुरी में से मधुर संगीत निकलेगा। जब सितार सही तरीके से उसकी स्ट्रिंग प्रॉपर्ली टाइट होंगी, प्रॉपर्ली फाइन ट्यून होंगी, तो उसकी जो प्ले करके जो ट्यून निकलेगी, वो अंदर के उस खाली बॉक्स में से एक म्यूजिक करके बाहर निकलेगी, म्यूजिक की तरह बाहर निकलेगी। तो उस सितार को, उस वीणा को, उस तबले को, उस बांसुरी को फाइन ट्यून किया जाता है। और अगर वो फाइन ट्यून नहीं है, अगर वो सही तरह डेवलप नहीं है, तो क्या म्यूजिक निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारी जिंदगी को भी फाइन ट्यून होना जरूरी है, बहुत सारी एनर्जी के साथ हमारे चारों तरफ की, तब हमारे अंदर संगीत निकलेगा, मधुर संगीत निकलेगा प्यार का। वो प्यार का नहीं जो मैन वुमेन के बीच में, वो प्यार का नहीं जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में, वो प्यार जो ओरिजिनल एसेंस एक्सपीरियंस है, आपका अपना मधुर संगीत। अगर आप सितार की आवाज सुनते हैं तो सितार ये कहता है कि मैं किसको प्यार कर रहा हूँ। अगर आप फ्लूट की आवाज सुनते हैं तो क्या आप ये कहते हैं किसको प्यार कर रहा है? वो संगीत फ्लूट का होता है, सितार का होता है, वीणा का होता है, आपका भी एक संगीत है। जब आपके अंदर वो संगीत बजता है ना, और जब आप अनुभव करते हैं प्यार को, प्यार की एक्सपीरियंस को जब आप अनुभव करते हैं ना, तो आप बहुत सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर जाते हैं। आपकी जो सीमित परिधियां हैं, सीमित बाउंड्री हैं, वो टूटने लगती हैं, आप एक्सपेंड होने लगते हैं, आप फैलने लगते हैं। एक बड़ा अलग, एक बड़ा विलक्षण, एक बड़ा अलौकिक अनुभव होता है, जो इस दुनिया से अलग होता है, जो आपके अब तक के अनुभवों से कहीं आगे, कहीं ज्यादा होता है। एक अनोखा ब्लिस, एक अनोखा आनंद का अनुभव। कुछ लोग उसको इंग्लिश में एक्सटेसी भी कहते हैं। एक बड़ी अनोखी फीलिंग, अपने आप को अपने चारों तरफ की दुनिया के साथ मर्ज कर देने की, अपने आप को ब्रह्मांड के साथ मर्ज करने की। ब्रह्मांड तो हमने देखा नहीं है, दुनिया तो पूरी हमने देखी नहीं है। जो हमारे सामने होता है, जो हमारे नजदीक होता है, हमारी पहली इच्छा होती है हम उसके साथ मर्ज हो जाएं, हम उसके साथ फैल जाएं, हम उसके साथ बात करें, हम उसके साथ जो भी घूमने जाएं, हम उसके साथ गार्डन में जाएं, हम उसके साथ देर तक बात करें, हम उसके साथ टाइम की परिधि को, टाइम की बाउंड्री को भूल जाएं, हम उसको टच करें। लेकिन हमारा बेसिक नीड होती है फैलने की, एक्सपेंड करने की। वही चीज अगर किसी व्यक्ति से हटकर अगर नेचर के साथ वाइब्रेट करते हैं, नेचर के बहुत सारे एलिमेंट के साथ वाइब्रेट करते हैं, एयर के साथ, अग्नि के साथ, वायु,
अग्नि, धरती, आकाश, पानी, वही प्यार का हायर लेवल का एक्सपेंशन होता है। इसलिए नदियां, इसलिए समुद्र, इसलिए झील जहां जहां है वहां वहां प्रगति है, वहां वहां प्रोस्पेरिटी है, वहां वहां समृद्धता है, वहां वहां कल्चर है, वहां वहां सिविलाइजेशन है, वहां वहां के लोगों का जीवन बहुत अच्छा है। इसलिए जब हम अच्छे मूड में होते हैं, जो हम प्यार के रोमांटिक मूड में होते हैं, तो हम उन जगहों पर जाना चाहते हैं जहाँ समुद्र किनारा है, जहाँ नदी किनारा है, जहाँ झील किनारा है। हम ओपन स्पेस में जाना चाहते हैं क्योंकि हम वहाँ फैलना चाहते हैं। हम उसको बहुत लिमिटेड एक्सपीरियंस में समझते हैं कि रोमांस है, लेकिन रोमांस या प्यार हमारे अंदर फैलने के अनुभव का ही एक बाहरी मैनिफेस्टेशन है। और वो हमारे चारों तरफ हर जगह है प्यार। हर समय पर वो प्यार हमारे अंदर फ्लो हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे बांसुरी के अंदर जब एयर फ्लो होती है, तो ना एयर परमिशन लेती है बांसुरी से कि मैं आ जाऊं अंदर, ना बांसुरी एयर को बुलाने जाती है। बांसुरी के अंदर का स्पेस जब खाली हो जाता है तो एयर अपने आप फ्लो करने लगती है। ठीक वैसे ही एयर, ठीक वैसे ही नेचर हमारे अंदर चारों तरफ है, हमारे चारों तरफ एम्ब्रेस किए हुए हैं, बहुत इंटेंस फॉर्म में, बहुत हीलिंग फॉर्म में, बहुत ओवरवेलमिंग फॉर्म में। लव हमारे चारों तरफ है। अगर हम अपने को खाली कर दें, अगर अपने को एम्प्टी कर दें, अगर हम अपने अंदर की रुकावटों को हटा दें और अपने अंदर की इनसिक्योरिटी को हटा दें, अपने अंदर के नेगेटिव थॉट्स को हटा दें, अपने अंदर की सोच को हम हटा दें, अपने अंदर के डर को, फियर्स को हटा दें, जैसे ही हम हटाएंगे वैसे ही हम खाली होंगे, वैसे ही वो एयर की तरह वो नेचर और नेचर की वो सारी एनर्जी जो फुल ऑफ लव है वो हमारे अंदर से फ्लो करेगी। इसलिए जहां जहां आप जीवन देखेंगे, जहां जहां आप जीवन देखेंगे, वहां वहां प्यार है। प्यार का ही एक मैनिफेस्टेशन है, एक फॉर्म है। जहां जहां आप जीवन देखेंगे वहां वहां महसूस करेंगे कि बहुत सारी एनर्जी मिलकर जब एक जीवन दे रही है, तो बहुत सारी एनर्जी जीवन को सस्टेन कर रही है। आप जू देखने क्यों जाते हैं? अलग अलग तरह के प्राणी जू में होते हैं। क्यों जिंदा हैं? कौन जिंदा रखे है? बहुत सारी एनर्जी, धरती भी है, आकाश भी है, पानी भी है, अग्नि भी है, वायु भी है। क्यों आप पेड़ को देखते हैं? क्यों आप नदी को देखते हैं? क्यों आप बादल को देखते हैं? क्यों आप बारिश को देखते हैं? क्यों आप इंद्रधनुष को देखते हैं? उन सबको देख के आपको क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उन सबको देख के आपको ये एहसास होता है कि ये भी प्यार का एक अलग डायमेंशन है। वो प्यार जो प्रकृति ने आपको किया है, वो प्यार जो प्रकृति के सृष्टा ने, जिसको हम पॉपुलरली गॉड कहते हैं, जो भी नाम कहते हैं, जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, वाहिगुरु जी बोलते हैं, नाम है जैसा जैसा जिसको विश्वास है। लेकिन नाम के पीछे एक शक्ति है, एक एनर्जी है। वो एनर्जी भी हम सबको बराबर समान रूप से प्यार करती रही है, तभी हमें करती रही है और करती रहेगी। वो सारे प्रतीक, हरियाली, पेड़, नदी, झील, आकाश, रेनबो, समुद्र, वो सब हमें बताने के लिए है। वो सब प्यार के ही हिस्से हैं। आप जब पेड़ को देखते हैं, हरियाली को देखते हैं, तो प्यार का हिस्सा है। एक भी पत्ती उससे अलग हो जाती है तो वो प्यार का हिस्से से टूट जाती है, वो पत्ती डेड हो जाती है। जहां लाइफ है वहां मैनिफेस्टेशन ऑफ लव है। जहां मैनिफेस्टेशन ऑफ लव नहीं है, चाहे वो पत्ती पेड़ से टूट जाए, चाहे एक इंसान दूसरे से टूट जाए, चाहे इंसान अपने अंदर के प्यार के सोर्स से टूट जाए, तो भी डेथ की शुरुआत हो जाती है। जब हम अपने आप में अपने अंदर टूटने लगते हैं, अपने सोर्स से अलग होने लगते हैं, तो हम भी टूटने लगते हैं और हम भी डिप्रेशन होते होते डेथ की तरफ बढ़ने लगते हैं। कभी सोचा है कि प्रकृति हमारे चारों तरफ कितने अलग अलग अंदाज में, अलग अलग तरीके से हमें प्यार का मैसेज देती है? 24 घंटे, 24 घंटे जितने भी क्रिएशन है, जितनी भी सृष्टि है, अलग अलग अंदाज में हमको प्यार का मैसेज देती है, बिना रुके हुए, बिना किसी स्वार्थ के। जितनी भी क्रिएशन है, आप चारों तरफ देख लीजिए, जितनी क्रिएशन है, प्रकृति का एक अंदाज है आपको बताने का कि प्रकृति आपको आपको आपके अस्तित्व को प्यार करती है। हम ढूंढते रहते हैं एक बॉयफ्रेंड से प्यार, एक गर्लफ्रेंड से प्यार, हस्बैंड से प्यार, वाइफ से प्यार, और हम दुखी रहते हैं क्योंकि वो प्यार
जो हम लोगों में ढूंढते हैं वो हमें कभी परमानेंट नहीं मिल सकता, वो हमें कभी हमेशा एक मात्रा में नहीं मिल सकता, वो कभी हमें हमेशा हमारे डिजायरेबल लेवल पर नहीं मिल सकता, और ना ही वो कभी हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। फिर भी हम चाहते हैं प्यार। क्यों चाहते हैं हम प्यार? क्योंकि उस प्यार से हमें एहसास होता है कि हम किसी को बिलोंग करते हैं, हम किसी की जिंदगी में इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं, हम किसी के विचारों में हिस्सा हैं, हम किसी की भावनाओं में हिस्सा हैं, हम उसके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हैं। कोई हमें मिस करता है, कोई हमें याद करता है, कोई हमारे बारे में सोचता है, हमें उससे महसूस होता है कि हम उससे जुड़े हुए हैं, हमें महसूस होता है कि हम सपोर्टेड महसूस करते हैं, हम स्ट्रेंथेड महसूस करते हैं, हम महसूस करते हैं कि हम कमजोर से ताकतवर हो गए, क्योंकि कोई हमारे बारे में सोचकर हमें अपनी भावनाओं में रख के, हमें अपने जीवन का हिस्सा बना के हमें सपोर्ट कर रहा है, हमें स्ट्रेंथन कर रहा है। तो ये चीजें हम छोटे लेवल पर, नीचे लेवल पर आदमियों में, इंसानों में, छोटे रिश्तों में ढूंढते हैं। हकीकत ये कि उससे कहीं ज्यादा मात्रा में, कहीं ज्यादा अच्छी तरह प्यार हमारे चारों तरफ है। इसलिए बहुत सारे लोग प्यार के एक्सपीरियंस को करने में बहुत असक्षम हैं, इनकेपेबल हैं। उनके पास कोई स्किल नहीं है कि वो कैसे प्यार को एक्सपीरियंस करें, और एक्सपीरियंस नहीं करते तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने प्यार को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। इट टेक्स प्रैक्टिस, इट टेक्स लर्निंग। आपने एक्सपीरियंस करना भी सीखना है तो आपको एक्सप्रेस करना भी सीखना है। एक्सप्रेस करने के बारे में कुछ बातें हम थोड़ी सी आपको बता दें। सही इंसान को सही समय पर, सही अंदाज में अपने प्यार को एक्सप्रेस करना भी अपने आप में एक आर्ट है, एक स्किल है। वो अगर आप सही तरह यूज करेंगे तो आपके अपने जीवन में भी बहुत सारे फायदे होंगे, और जिसको आप एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके जीवन में भी बहुत सारे बदलाव आएंगे। क्योंकि बहुत सारी बाउंड्रीज जो हमने खुद बना के रखी हैं अपने आप को एक दूसरे से अलग रखने की, वो टूटेंगी। हमें एक दूसरे से सामीप्य, क्लोजनेस, आत्मीयता महसूस होगी। प्यार के अनुभव का सबसे ज्यादा सुखदाई जो एक चीज होती है, जो हम किसी से जुड़ते हैं तो हमें लाइफ एक्साइटिंग लगने लगती है, तो हमें लाइफ में कुछ नयापन लगने लगता है। इसलिए हमें एक्सप्रेस करना सीखना है। कुछ समय के लिए हम सारी दुनिया को भूलकर अपने प्यार को एक्सप्रेस करें जो हमारे नियर एंड डियर वंस है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है गिफ्ट ऑफ लिसनिंग। हम जिनको इंपॉर्टेंट समझते हैं हम उनको सुने, ज्यादा से ज्यादा सुने। गिफ्ट ऑफ लिसनिंग। 80-20 का रूल याद रखिएगा। 80% लिसनिंग, 20% टॉकिंग। 80% लिसनिंग, 20% टॉकिंग। हम जिनको प्यार करते हैं उनके साथ अपनी भाषा में, अपने तौर तरीके में ज्यादा से ज्यादा वर्ड प्लीज लेकर आए, ज्यादा से ज्यादा वर्ड थैंक यू लेकर आए। प्लीज, थैंक यू, प्लीज, थैंक यू। तीसरी बात, हम अपने प्यार को, अपनी भावना को एक्सप्रेस करें ज्यादा से ज्यादा, तो अप्रिशिएट करें उनको ज्यादा से ज्यादा। हर इंसान में, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल है, 10 कमियां होंगी, हैं भी, होंगी भी, हैं भी, 2 अच्छाइयां भी होंगी। हम उसको अप्रिशिएट करें। हम क्यों ना अप्रिशिएट करें उन लोगों में जो हमारे नियर एंड डियर वंस हैं। हम जिन्हें प्यार करते हैं उनको हम हेल्प करें, जिस जिस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। छोटी छोटी कर्टसी से लेकर जो कुछ कर सकते हैं, पानी का गिलास देना है, गाड़ी का दरवाजा खोलना है, दरवाजा खोल के उन्हें बाहर निकलने का पहले मौका देना है, पहले वो खाना खाने बाद में हम खाएंगे, हम उनकी बात पहले सुनने बाद में हम कहेंगे। हमें वो कर्टसी एक्सपेंड करनी है, हम उनको हेल्प करें। कभी कभी उनको थैंक यू का एक मैसेज भेज दें, कभी थैंक यू नोट डाल दें, कभी उनको एक मैसेज भेज दें अप्रिसिएशन का। उनमें वो सारी अच्छाइयां नोटिस करें ज्यादा से ज्यादा, और उनको बताएं। उनके अंदर कमियां हैं, जरूर होंगी, हर एक में होती हैं, उसको इग्नोर करें, वो भी आपके प्यार का एक एक्सप्रेशन है। उनमें नुक्स होंगे, उनमें 10 नुक्स होंगे, उसे इग्नोर करें। वो नुक्स सब टेम्परेरी हैं, वो सारे नुक्स बहुत इनसिग्निफिकेंट हैं और समय के साथ निकल जाएंगे अगर आप चाहेंगे। अगर आपका प्यार का एक्सप्रेशन बढ़ता रहेगा तो वो सारे नुक्स निकल जाएंगे। वो इंसान आपकी जरूरत के हिसाब से, आपकी चाहत के हिसाब से अच्छा और बहुत अच्छा बनता जाएगा, अगर आप सही तरीके से प्यार एक्सप्रेस करेंगे तो। जो सुना है इसके ऊपर सोचिए आराम से 2 मिनट।